Walaikum salam. I think we should start with the class. Um, and the reason is because the class is recorded, so to save time and to make it accessible and of course to put on YouTube. Right now that anyone is going to watch. So as promised, we said that we're going to start this class or any other class with a discussion on what is happening outside, like something which is not related directly to the course book but is related to the economy. So what is happening around us? पाकिस्तान की इकोनॉमी से रिलेटेड आज एक दो बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, right? So what's happening? So let's look at some economic news. Today, PTA has agreed to do what? Has given approval. PTA has given approval to whom? To Lucky Group of doing what? Of setting up the Samsung assembly plant. The Samsung assembly plant. Achha, I will not be able to hear you. So if you have something to share or something to write, please put it on chat.
Mahid Amin, thank you. So what's today's topic? Today's topic is the same as yesterday, the economic problem and how we have to go forward, Mr. Ashar Amir Saab. So, and what I'm doing, आप चूंकि नई आए थे शुरू से, तो I am just discussing what has happened today in Pakistan. So PET has given approval to Lucky Group of setting up the Samsung assembly plant for what? For mobiles. For mobiles. And this is exciting news for mobiles. Wow. Okay. And yeah, Lucky Group is basically Lucky Automobiles को मिला है, Lucky Mobiles जो इसका एक मोबाइल सेक्टर है उसको, सॉरी नॉट ऑटोमोबाइल, लकी मोबाइल ग्रुप जो कि लकी ग्रुप है। और लकी ग्रुप कौन ओन करता है? द तब्बा फैमिली, जिनका ये तब्बा हार्ट है। लकी सीमेंट वो ओन करते हैं, पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा कॉन्ग्लोमरेट है, बहुत सारी चीज़ें वो करते हैं। ये तब्बा चौरंगी जो है वो मोहम्मदी सोसाइटी में उन्होंने बनाई, क्योंकि वो मोहम्मदी सोसाइटी में रहते हैं, रज़ाक तब्बा एंड उनका तो इंतकाल हो गया शायद, तो जो उनके बेटे वगैरह हैं। So I had rumors about Amazon. Maybe you might have heard of rumors about Amazon, but today, if you would have looked at the paper, then there are no rumors. There is a khabar. Sir, new electric and hybrid cars policy has started implementing from today. Absolutely, I agree. Lekin unless and until the car has the market has a particular footprint, तो ये policy कितनी होगी या नहीं होगी? ये economic news exciting. ये मुझे personally exciting इसलिए लग रही है because it talks about setting up a new opportunity for a lot of things. पाकिस्तान के अंदर वैसे भी जो टेलीफोन्स की पेनिट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा है। हम और हमारी जो इम्पोर्ट्स ऑन टेलीफोन है, ऑन सेल फोन्स हैं, वो बहुत ज़्यादा है। सो सैमसंग का यहाँ पे प्लांट सेटअप करना इज़ ग्रेट न्यूज़ फॉर द इकोनॉमी। हाउ इज इट गोइंग टू अफेक्ट द इकोनॉमी आगे जाके, दिस रिमेन्स टू बी सीन, बट this is something which is very interesting and should excite you as well as students of economics. PTA stands for Pakistan Telecommunication Authority, right? So Pakistan Telecommunication Authority ने green signal दे दिया है कि सैमसंग का प्लांट और उसकी जो मोबाइल फोन्स की असेंबली है वो पाकिस्तान में हो सकती है। So it is a big breakthrough. Especially it's a breakthrough and it is a very big development against your neighboring country. जहाँ के ऊपर which is a very big hotspot for manufacturing sector. So Volkswagen का प्लांट भी बनना है बलूचिस्तान में, उसकी भी न्यूज़ आई थी। Absolutely I agree, वो मेरी नज़र से नहीं गुजरा। I will get back to you once I have more knowledge on that. Especially आशर ने मुझे बोला है Amazon के बारे में, not very aware of it. I will check back, बल्कि मैं इसको लिख लेता हूँ। I am going to see and I am going to scour and I am going to come up with anything which is related. आपने हाइब्रिड पॉलिसी की भी बात की थी, इसको भी देख लेते हैं। Now, when we discuss anything, it always has a very important implication on our class, or the implication is that you guys have to do an assignment. Hooray! Everything is fun and games in economics, right? You have to do an assignment, and this first assignment is very simple. It has got nothing to do with the textbook. मैं आपसे कोई boring चीजें नहीं करा रहा। This assignment is based on the news which is mentioned above, right? आपने कुछ नहीं करना है, आपने ही करना है analyze who may be affected by the news given above and how. कौन कौन इस न्यूज़ से इम्पैक्ट, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, इसका असर पड़ेगा, किन लोगों पर, किन ग्रुप्स पे ये वाली डेवलपमेंट का असर पड़ेगा और कैसे, और कैसे। ठीक है, analyze who may be affected by the news given and how. May be affected by the news and how. Right? ये अपना असाइनमेंट करना है। कितने पे कितने उसका असाइनमेंट है? मैं क्या आपसे चाह रहा हूँ, I want a 400 word असाइनमेंट। आप कैसे करेंगे? आप इसको करेंगे गूगल डॉक्यूमेंट्स पे, ठीक है, ताकि ये आपके पास रहे और आप इसको PDF में डाउनलोड करेंगे।
और इसको गूगल क्लासरूम के ऊपर, जहाँ के ऊपर मैं इसका असाइनमेंट का क्वेश्चन आपको दूंगा, उसके अंदर इसको अपलोड करना है। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो ये पता लग गया कि हमारा पहला काम क्या है, हमें कैसे करना है। ठीक है, बाय द न्यूज़, हु मे बी अफेक्टेड बाय द न्यूज़, और थिंक ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स। फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट अ स्टेक होल्डर इज। अभी आप जो लोग बिजनेस कर रहे हैं वो स्टेक होल्डर थियरी पढ़ेंगे। स्टेक होल्डर का मतलब होता है वो तमाम लोग जो किसी बिजनेस या किसी एक्शन से अफेक्टेड हो। तो ये याद रखिएगा कि इस सैमसंग की असेंबली प्लांट से सिर्फ जो है वो सैमसंग के यूजर्स को असर नहीं पड़ रहा होगा या कंपनी को असर नहीं पड़ेगा। देयर आर सो मेनी डिफरेंट पीपल who are going to be affected by this. So if you are smart enough, go to Dawn today after this class or whenever, and then look at the news piece and then try to come up with possible ways of how this news is going to affect the different stakeholders, right? And the most important part of the assignment instruction is the time of submission is 11:59 p.m. today, which is 11.08/21. तो जो जब भी आपकी घड़ी के ऊपर ये टाइम होगा आप इसको अपलोड कर देंगे। ये डेडलाइन है, इसके बाद बंद हो जाएगा। तो डेडलाइन का मतलब होता है इससे पहले करना है। ठीक है, अब बड़े मजे की बात यह है कि हमारे यहाँ कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जो AM और PM के अंदर खूब डिबेट उन्होंने की, राइट? तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट AM and PM मींस एंड व्हाट इट मींस फॉर यू ऑन द क्लॉक, राइट? So having said that, let's try to analyze and pick things which we learned yesterday, right? So the basic economic problem and basic economic problem हमने आपसे कहा क्या होता है, कल इसके बारे में हमने तफसील से आपसे बात की थी, और today we are going to continue from here. The basic economic problem means that there are fewer resources to satisfy unlimited wants and needs. Fewer resources to satisfy unlimited wants and needs, right? यानी कि हमारे पास resources कम हैं और needs and wants बहुत ज़्यादा हैं। मगर अगर आप एक बात नोट करो तो यार इस साल जितना हमने प्रोड्यूस किया है इतना तो हमने ज़िंदगी में कभी प्रोड्यूस नहीं किया। आज की जो टेक्नोलॉजी है वो पिछले कितने सालों की टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा है। We are doing so much. So why are we not able to satisfy our needs and wants? What are we missing? Needs and wants कभी पूरी क्यों नहीं हो सकती? Why will our needs and wants will never be? Why would our needs and wants never be satisfied? So please use the chat to write what you think. Why would the needs and wants can never be satisfied? कभी ये पूरी क्यों नहीं होगी? Why will they never be satisfied? ठीक है, basic economic problem can never be solved. Why? Because population is increasing day by day? No. अगर population is increasing day by day and we give everyone what they want and need, तो फिर हमारा economic problem तो खत्म हो जाएगा। Can never be solved. It is. Why? Why can it never be solved? The reason is because FOP, limited FOP, unlimited wants. No, and why? Yes, no. I know this would sound very strange. Yes, no. But I'm looking at your messages. Excellent. हुरिया छा गई हैं। अगर ये वही हुरिया वो लेवल वाली तो surprising छा गई हैं। A community starts to be expecting a better quality product. Yes, true. Please remember, जैसे ही हमारी एक need और want satisfy होती है, it evolves. Evolve का मतलब change नहीं होता, right? Needs and wants evolve. Needs and wants evolve. What are wants? What are needs and wants? ये तो हमने कल किया था, इसके बारे में तो हमने डिटेल से कल किया था कि नीड्स और वांट्स में क्या फर्क है।
और हमने आपको मैस्लोस हायरार्की करवाई थी, और आज मैं क्वेश्चन पढ़ रहा था एएस का, तो उसमें पता चला कि हाँ यार इसी तरीके से आपने आगे लेके इसको चलना है। सो नीड्स एंड वांट्स इवॉल्व। जब नीड्स एंड वांट्स इवॉल्व होती हैं तो क्या, जब नीड्स एंड वांट्स इवॉल्व होती हैं तो इसका क्या मतलब है? व्हाट डज एवोल्यूशन मीन, इवॉल्व मीन? इवॉल्व का मतलब होता है ट्रांसफॉर्म इनटू समथिंग बिगर इन वैल्यू, ट्रांसफॉर्म into something bigger, transform into something bigger and better in value, better in value. ये क्लियर हो गया? ट्रांसफॉर्म into something bigger and better in value. ये तो क्लियर हो गया ना? क्या मतलब वो है इसका? कैसे? You are walking, what do you want? People wants to be special. If everyone gets what they want, one would not be so special. Yeah, that is a nice way of saying Pakistanis तो वैसे भी जो है ना वो मुझे उससे ये चाहिए, कंपटीशन तो बहुत है, स्पेशली इन मटेरियलिस्टिक थिंग्स। जो इमटेरियल चीजें उनके अंदर हम compete करते ही नहीं, मटेरियलिस्टिक चीजों पे हम compete करते हैं। और मसला ये कि we start thinking that materialistic things are important. No, they are not. Let me break this to you. So you are walking, ठीक है, आप चल रहे हैं, और आप चल रहे हैं, आप you feel tired, and of course when you walk from one destination to another it's going to take time, so you get a cycle for yourself, right? And you say कि यार अब मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा और मुझे जोर भी उतना नहीं लगाना पड़ेगा। Good for you, आप एक साइकिल ले लेते हैं, right? So you take a cycle. What is the other thing? कुछ अर्से चलाने के बाद आपको इस बात का ख्याल होता है यार ठीक है जल्दी पहुंच जाता हूँ, जोर भी कम लगता है, लेकिन अगर मोटरसाइकिल हो जाए ना। सो नाउ साइकिल का रिप्लेसमेंट मोटरसाइकिल नहीं है, साइकिल का एवोल्यूशन है। इट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू समथिंग बेटर by putting electric parts into it, motor parts into it. Now you bought a motorcycle for yourself. अब आपको किस चीज की जरूरत पड़ गई? अब आपको पड़ गई कि यार पैर को ज्यादा बोझ ही ना चलाना पड़े, हिलाना ना पड़े, मोटरसाइकिल। So you got a motorcycle for yourself, right? Then when you start walking, keep on walking, you say you keep on riding from one place to another on your motorbike, you would say कि यार छोटी गाड़ी ना ले लें, राइट? अभी शादी हो गई है, क्या यार बेगम को इस तरह से लेके जो है ना बिठा के जाना पड़ता है, राइट? इधर उधर ये वो फलाना खाना, थक जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाते हैं। तो टशन होना चाहिए जिंदगी में। छोटा आप सेकंड हैंड मेहरान ले लेते हैं, यू बाय अ मेहरान, देन फ्रॉम अ मेहरान यू से कि नहीं यार अब फैमिली बड़ी हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नीड्स इवॉल्व हो रही हैं, ट्रांसफॉर्म इनटू समथिंग बिगर। यार सेकंड हैंड सिटी ले लेते हैं, ठीक है, आपने सिटी ले ली, फिर आपने कहा कि नहीं यार वो तो सब कुछ है, मगर अब सिटी का जो मॉडल है वो आउटडेटेड होता जा रहा है, तो वी लेट्स गो टुवर्ड समथिंग बेटर। अब आपने कहा कि यार डिफरेंट होने के लिए, जिस तरीके से हसन अली ने हमसे कहा था, वीजे ले लेते हैं। व्हाट इज हैपनिंग इन आवर एग्जांपल? आर वी चेंजिंग? नो, वी आर नॉट चेंजिंग। चेंजिंग का मतलब होता है लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट। आपकी गाड़ी पंक्चर हो जाती है ना, आप उसका टायर चेंज करते हैं, एक टायर को रिप्लेस करके उसकी जगह पे दूसरा बिल्कुल वैसे ही टायर लगा लेते हैं, मगर टायर को इवॉल्व नहीं करते। ये नहीं होता कि टायर की जगह पे आपने कहा कि अब यार मैं इस टायर की जगह पे स्केट्स लगा लूंगा, मेरी मेहरान जो है वो मेटल स्केट्स पे भी चल जाएगी उतनी अच्छी जितनी टायर पे चलती है। नो, नॉट पॉसिबल, नॉट हैपनिंग। What is happening in this example is that you are replacing your needs and wants with a greater need and want. You are satisfying them with something bigger in value, which is something better in value. So your needs and wants are continuously evolving. They are continuously evolving. If they're continuously evolving, then you would need innovation. And for that, your products, your resources are limited. That is why, Mira Bita, this is why this is why you need this. Okay? This is why आपका जो कभी भी बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो कभी भी सॉल्व नहीं हो सकता। Is this clear?
ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है ओ लेवल्स का। इज दिस क्लियर? इट कैन नेवर बी सॉल्व, व्हाई? और उसका व्हाई वाला पार्ट हमने बता दिया, व्हाई, ये व्हाई का आंसर है। इज दिस क्लियर? मुझे सबसे क्लैरिटी चाहिए प्लीज क्विकली। I know this may be annoying to most of you, but I want to do this so that it becomes simpler for us. Good, 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 good. Well done, well done. Few resources to satisfy you. अच्छा, now इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि resources are scarce. Resources are scarce. Resources limited हैं. Resources बोले तो factors of production, land, labor, capital, enterprise. लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, दे आर लिमिटेड। ये हमने कल किया था। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है सबकी नीड्स एंड वांट्स, सबकी सारी नीड्स एंड वांट्स पूरी नहीं हो सकती। इसका ये मतलब है सबकी सारी नीड्स एंड वांट्स। सोचिए, देखिए मैंने क्या लिखा है, सबकी, मैंने ये नहीं लिखा है सबकी नीड्स एंड वांट्स पूरी नहीं हो सकती, सबकी सारी नीड्स एंड वांट्स पूरी नहीं हो सकती। यानी कि एक तो हम सबकी नीड्स एंड वांट्स पूरी नहीं कर सकते, और अगर हम एक बंदे की नीड्स एंड वांट्स पूरी कर रहे हैं तो उसकी जितनी भी नीड्स एंड वांट्स हैं वो भी पूरी नहीं हो पाएंगी। यानी कि अगर मेरे पास 1 बिलियन की जगह पे, सॉरी 7 बिलियन की जगह पे एक इंसान भी हो और सारे रिसोर्सेस वैसे ही हो, तब भी उस एक इंसान की नीड एंड वांट पूरी नहीं हो सकती। हमजा अंसारी साहब, ये कल हमने किया था। ये LLC stands for Land, Labor, Capital and Enterprise. You may have missed, but you may not have missed the picture I had sent on the group. If you have all missed that, तो इसका मतलब है कल पढ़ाई नहीं हुई है। Land, Labor, Capital, Enterprise. Capital, Enterprise. Right? Hamza, do you know what land, labor, capital, enterprise is, or do I need to explain this to you? Were you in yesterday's class? Yes or no? जल्दी बता दो बेटा। Yes. So ये याद है, तो इसका मतलब कल का माइंड मैप खोल के नहीं पढ़ा गया, right? It's fine as long as you are okay with losing marks. सबकी सारी needs and wants हो सकती हैं, याद है? बस फिर यही है, इससे अच्छी क्या बात है। वेल डन मुंजा भाई, आ गए आप। सबकी सारी नीड्स एंड वांट्स पूरी नहीं हो सकती, ऑलवेज रिमेंबर दिस, सारी नीड्स एंड वांट्स पूरी नहीं हो सकती। अब हमें क्या करना पड़ेगा? वी विल हैव टू चूज, वी विल हैव टू मेक अ चॉइस, वी विल हैव टू चूज किसकी नीड्स एंड वांट्स पूरी करनी है। वी विल हैव टू मेक अ चॉइस। और जब हम चॉइस करते हैं, जब हम चॉइस करते हैं, यानी कि इसका मतलब है किसी को खुश करेंगे और किसी को नाराज करेंगे, किसी को खुश करेंगे और नाराज करेंगे। मेरे पास जेब में आई हैव 100 रुपीज, मेरे पास जेब में 100 रुपया है, आई हैव 100 रुपीज, और मेरे पास इस वैल्यू को बढ़ाने का, अपनी इनकम को बढ़ाने का कोई और तरीका नहीं है। और मैं खड़ा हूं एट्रियम मॉल के फूड कोर्ट में, जिसके बिल्कुल सामने सिनेमा भी है, ठीक है। सो ईदर आई कैन गो एंड बाय समथिंग फ्रॉम दिस चार्ट वाला जो वहां के फूड कोर्ट के ऊपर है, और आई कैन गो एंड बाय अ मूवी टिकट। द चाट और द चना पापड़ी is 100, not chana papri, sorry. So chana papri is rupees 100 as well, ठीक है। And lo and behold, the movie ticket to my favorite movie ticket is 100 rupees as well, right? Is rupees 100 as well. आ गए आप? अच्छा, अब जेब में 100 रुपया, ये बढ़ नहीं सकता, रिसोर्सेज लिमिटेड, रिमेंबर। और आपकी वांट है, भूख भी लग रही है और एंटरटेन भी होना है। चना पापड़ी आपको क्या देगा? चना पापड़ी आपको बेनिफिट क्या देगा? यू विल बी सेटेड,
सेटेड का क्या मतलब है? सेटेड का मतलब है आपकी भूख खत्म हो जाएगी, यू विल बी सेटेड। बेनिफिट क्या मिलेगा आपको? यू विल बी सेटेड, आपका पेट भर जाएगा। अगर आप मूवी टिकट लेते हैं तो इससे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा? इससे बेनिफिट क्या मिलेगा? यू विल बी एंटरटेन्ड, यू विल बी एंटरटेन्ड। वो कहते हैं ना माइंड फ्रेश करने जा रहा हूं, यू विल बी एंटरटेन्ड। अब हाउ मेनी ऑफ यू विल चूज अ मूवी एंड हाउ विल यू ऑफ यू विल चूज अ चना पापड़ी? जल्दी से, शाबाश 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 शाबाश। चना पापड़ी, बुशा, सबको भूख लग रही है। गुड यार, आई एम ग्लैड, मुझे भी लग रही है और मैं आपके साथ बैठा हूँ। चना पापड़ी, आप तो अपने घर में बैठे हैं, मैं तो कैंपस में बैठा हूँ। अबे का फिल्में विल्में नहीं देखता कोई यहाँ पे? सारे के सारे जो है ना चना पापड़ी चना पापड़ी चना पापड़ी चना चाट, मतलब कि ऐसे भूखे हैं सारे। हुरिया ने तो लिखा ही नहीं है। महानूर ने क्या लिखा है? सीमल ने लिखा है चना पापड़ी, महानूर ने लिखा है खदीजा ने लिखा है चना पापड़ी। ठीक है सर, नेटफ्लिक्स जिंदाबाद। नहीं, स्मार्ट नहीं होना। पहले ही बोल दिया था कि यहाँ पे रिसोर्सेज नहीं है तो देयर इज नो नेटफ्लिक्स, कटो यहाँ से। भूख फिल्म से ज्यादा जरूरी है। वाह 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 वाह। एनिमे जिंदाबाद। नहीं बेटा, नो एनिमे एनिमे, यू इधर यू हैव अ मूवी और यू हैव चना पापड़ी। हाँ, ईदर ऑफ द टू, देयर इज नो अदर थिंग। इसी को तो कहते हैं रिसोर्सेज आर लिमिटेड। 1980 में चले गए, बस वहीं पे हैं। अगर आप समझो तो 1975 से आप बड़े भी नहीं हुए हैं टेक्निकली, सिर्फ आपकी कंजम्पशन बढ़ी है और कुछ नहीं हुआ है। अब जिंदा रहेंगे तो मूवी देखेंगे ना। अच्छा सही है, तो एक दिन नहीं खाओगे तो मर जाओगे क्या? so cause food is a need and is necessary for living. Okay, good. फौरन इमाद भाई ने जो है ना वो पार्टी ऊपर होने का सबूत दिया है। ऐसी चीज लिया है कि बस फतवा, फौरन ही फतवा ना, मतलब कि इससे आगे कुछ नहीं आप बोल सकते। बस मैंने बोल दिया। सर खाने की बातें मत करें प्लीज, भूख लग जाएगी। नहीं लगे, मैं बैठा हूं तुम लोगों के साथ, लगे और लगे। गुड। सो चना पापड़ी ₹100 की है, मूवी टिकट ₹100 की है। यू कैन ईदर चूज अ मूवी और यू कैन चूज, लेट्स से मोस्ट ऑफ यू चूज चना पापड़ी, so you choose chana papdi. What are you going to give up? What are you giving up? You have chosen this, आपकी चॉइस ये होती है। चलें इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं। You are going to choose, if you choose chana papdi, आप चना पापड़ी अगर आप चूज करते हैं, so what's going to happen is that you're going to give up. You're going to give up. What are you going to give up? You're going to give up being entertained. क्योंकि आपने मूवी छोड़ दी। मूवी आपको बेनिफिट क्या देती थी? मूवी आपको बेनिफिट देती थी एंटरटेनमेंट। मूवी आपको बेनिफिट क्या दे रही है? एंटरटेनमेंट। तो बीइंग एंटरटेन्ड की जो आपकी नीड है वो आपने छोड़ दी। सो यू गिविंग अप ऑन बीइंग एंटरटेन्ड। तो चना पापड़ी खाने का नुकसान क्या हुआ? कि आप एंटरटेन नहीं हो सके। द बेनिफिट विच यू गिव अप बाय चूजिंग समथिंग, बेनिफिट आपने चूज क्या किया? चना पापड़ी। मगर उस चना पापड़ी के चूज करने में यू हैव गिवन अप अ बेनिफिट। दैट बेनिफिट इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दैट बेनिफिट, वेरी गुड अब्दुल हाई, वेरी गुड अहमद राना साहब, छा गए आप। अहमद, अपना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इस एग्जांपल में व्हाट इज माय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? इस एग्जांपल में द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इस एग्जांपल में द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज व्हाट? इज बीइंग एंटरटेन्ड। बीइंग एंटरटेन्ड। वेरी गुड। नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, आई वुड नेवर हैव सेड नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव गिवन अप, इसीलिए मैंने लिखा नहीं यहाँ पे मूवी। मरकटिया साहब, मैंने ये नहीं लिखा कि मूवी टिकट इज माय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आप नोट करें, आप अभी भी अपनी ओ लेवल की जो आपको सिखाया गया उस पर चल रहे हैं। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ ही नहीं है मूवी टिकट, मैंने लिखा है बीइंग एंटरटेन्ड इज योर। आपने, ठीक है आप मूवी नहीं देख सके, लेकिन उस मूवी देखने से आपको बेनिफिट क्या मिलता? एंटरटेन्ड होना।
तो ये याद रखें ना, चीजों को रटे नहीं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दो लफ्जों से मिला है, अपॉर्चुनिटी और कॉस्ट। कॉस्ट यानी कि कुछ कॉस्ट है, कॉस्ट का क्या मतलब है? आपका नुकसान। तो नुकसान क्या हो रहा है कि मुझे फायदा नहीं मिला। मूवी टिकट क्या है, नुकसान क्या है? मूवी टिकट का नुकसान ये है कि मैं एंटरटेन नहीं हो सका। तो एंटरटेन नहीं होना इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आया है, एंटरटेन नहीं होना इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये क्लियर हो गई बात? ठीक है। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ चना चाट पापड़ी या चना पापड़ी इज बीइंग एंटरटेन्ड, which is your opportunity cost. Opportunity cost is very simply the benefit from the next benefit given up by choosing the next best alternative. So the benefit given up, whenever you make a choice, you will incur an opportunity cost. Always remember, whenever you make a choice, you will always incur, हमेशा opportunity cost incur करेंगे आप in economic goods, economics में। अभी हम वो बताते हैं। Benefit from the next best alternative given up. Benefit from the next best alternative given up is what? Is your opportunity cost. Whenever you are going to opportunity cost, whenever you are going to choose, you're going to incur opportunity cost. ये क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया? यहां तक मेरी क्लास के बच्चों, प्यारे बच्चों, क्लियर हो गया? We started with the basic economic problem. We started with what few resources means. Why does a basic economic problem always will continue? Why can it never be solved? We talked about that the resources are scarce. We talked about okay, whenever there's scarcity, you will have to choose, and whenever you choose, you incur something known as opportunity cost. And we gave you a scenario and we saw that इससे क्या होगा if you choose a particular option. ठीक है, ये क्लियर हो गया? बेटा क्या हर चीज जो हम चूज करते हैं उसके अंदर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है? जी, सब चीज में होती है, मगर उसके अंदर एक शर्त है। वो शर्त ये है, it depends upon the type of goods. There are two types of goods. There is an economic good, there is an free good. There is an economic good and there is a free good. What is an economic good? What's the economic good? Someone knows what economic good is? If you know, please put it on chat. Very good. Very good, Ahmed Rana. Very good, Abdullah Nawaz. Shabash. Very good. Does anyone who's not from O levels try to, Good, Hassan Rayan. Well done. Anyone else? Does anyone else have an opinion to say? नहीं? वो लोग जो O levels पे जिन्होंने इकोनॉमिक्स नहीं किया हुआ वो सो रहे हैं। भाई फ्री गुड क्या है? सोचो, फ्री और गुड। गुड का मतलब है चीजें, फ्री का क्या मतलब होता है? मुफ्ता। हाँ, तो वो सारी चीजें जो मुफ्ते से मिलती हैं वो क्या है? थिंक 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 थिंक। मानूर का दिमाग क्यों नहीं चल रहा? खदीजा कहाँ है? भुट्टो साहिबा कहाँ है? काथ्या? हाँ, गवर्नमेंट स्पेंडिंग फ्री। अरे वाह 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 वाह। गवर्नमेंट चूम नहीं लेगी आपको, छप्पी नहीं डाल देगी अगर आपने गवर्नमेंट की स्पेंडिंग को फ्री कर दिया।
कि गवर्नमेंट जो है ना वो अब्दुल भाई कि गवर्नमेंट बोलेगी कि यार मतलब आप गवर्नमेंट स्पेंड करती जा रही है और उसको कोई कॉस्ट नहीं पड़ रही। स्ट्रीट लाइट फ्री गुड का मतलब है कि किसी को कॉस्ट बर्दाश्त नहीं करनी पड़ी, आपको नहीं, किसी को कॉस्ट बर्दाश्त करनी हो। ना सिर्फ स्ट्रीट लाइट पब्लिक गुड है बल्कि वो मेरिट गुड भी है। तो मरकटिया साहब ने मेरिट गुड बोला, ये पब्लिक गुड है, वो कंफ्यूज हो गए। एनीवे, इकोनॉमिक गुड्स आर दोज गुड्स which use factors of production, which use resources to be made, require resources to be produced, right? Require resources to be produced, such as my car, such as road, such as street light, such as my laptop.